Hello and welcome to Vice IAS Academy. I'm your Indian Polity faculty. We have started Panchayati local government. So we have done one lecture on the local government. Now this is the second lecture. We'll finish the lecture. Actually, I was having one friend. So वो रोज रात में मूवी देखता था आराम से और सारी ऑस्कर वाली मूवी देखता था. He was having a collection, वन टीबी का मेमोरी था उसके पास, तो सिर्फ मूवी थी, अभी हॉलीवुड. ठीक है. And although he got selected, every time he used to give interview. मतलब जब से हम देख रहे हैं वो 5-6 बार इंटरव्यू दिया है. 7वें इंटरव्यू में शायद उसका हो गया है. तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आप क्या देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं. शुड हैव अ वेरी स्ट्रांग माइंड, क्लियर कट. ओके, सो वी वर डूइंग द प्रॉब्लम्स इन पीआई, है ना? पीआरआई है ना? Okay. कौन से 2 प्रॉब्लम किए हमने? 2. वी हैव डन 2, राइट? व्हाट आर दे? हाँ, कोई एक बोलो. हाँ, third is high with a huge dependency for finance on state. Okay, so what used to happen, there is an independent body, State Finance Commission, to look after the financial matter of the panchayat. Okay, and to devolve the power between the center, state and the local government, and between urban and the rural. Okay, so this has to be a devolution of the financial resources. But the problem is that most of the recommendation that is given by the State Finance Commission is actually not adopted. It is largely ignored. Now there is a reason to ignore it. Okay, the reason that is cited by the state government is that they themselves are not financially independent. जैसे कि मेजर स्टेट्स वगैरह लें, जैसे कि उत्तराखंड फॉर एग्जाम्पल. उत्तराखंड इज अ पैराशूट स्टेट. Actually, we do not need to, open the create a Uttarakhand. कोई पर्पस नहीं था उसको क्रिएट करने का, क्योंकि उत्तराखंड को क्रिएट करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ. ठीक है, देखा जाए तो ये इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द सेंटर्स ग्रांट. ठीक है, पहला, क्योंकि मेजर जो उसका उत्तराखंड का मेजर जो वो है वो टूरिज्म है. ठीक है, बट ओवर अ टाइम द इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड इन उत्तराखंड. बेसिकली मोर इम्पोर्टेंटली इसमें कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज एंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर एट दैट प्लेस. बाकी ना वहाँ कोई मिनरल्स है ना कुछ है. फॉरेस्ट है, वो हाईली रिजर्व्ड है. ठीक है, वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस आर द ओनली, अभी उन्होंने बनाया हरिद्वार में इंडस्ट्रियल टाउन्स वगैरह बने हुए हैं. तो मेजर जो बेसिकली यू कैन से industries are getting developed, but still they are highly dependent. Now such states which are highly dependent, Chhattisgarh, there is a mining, but there is a moist problem. Okay, we have created Chhattisgarh. Jharkhand, there is a mine, but there is a problem of that can be developed. Left wing extremist का problem है वहाँ पे. ठीक है, वो भी. तो majority of the state in India is actually highly dependent on the center's grants. If they themselves are dependent on the central grants, how they are going to develop more finance to the local bodies? Now what happened? This also get impacted by the introduction of GST. GST के introduction से this also get impacted. Now how this got impacted by the GST? In the GST we have a single tax. Most important aspect of GST is that the state has lost its power to सेल टैक्स. ठीक है, तो सेल टैक्स मेन पावर था, मेन रेवेन्यू रिसोर्स था, वही छोड़ दिया.
तो वो लोकल बॉडीज को क्या देंगे? इवन ऑक्ट्राई, दैट इज द लोकल टैक्स, दैट इवन गॉट इन मेनी ऑफ द स्टेट इट गॉट एबॉलिश। कुछ मेट्रोपॉलिटन स्टेट है जहाँ पे वो लगा हुआ था, ठीक है, जीएसटी के आने की वजह से वो भी खत्म हो गया, ठीक है। सो यू कैन से local government is more like a, it's better we don't have a local government. Okay, first thing. Another important reason, now in the, if you see in the urban and rural, अगर हम urban और rural के categorization पे आएंगे, the, you can say the resource for revenue even for the local government is less with the rural areas. रूरल एरिया में क्या होता है? रिसोर्स का कोई अपॉर्चुनिटी है? इट्स वेरी नेग्लिजिबल, ठीक है। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन द अर्बन एरियाज, ठीक है। अर्बन एरिया में हाउसिंग टैक्स है, ये, ठीक है, तो वहां पे ज़्यादा है। मोर डेवलपमेंट वर्क शुड बी डन इन द रूरल एरिया। डेवलपमेंट वर्क कहाँ ज़्यादा करना पड़ेगा? रूरल एरिया में, ठीक है। पॉवर्टी, और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रूरल गवर्नमेंट के इस्तेमाल में क्या है? पॉवर्टी एलिवेशन इज द मेन टास्क at the rural level, ठीक है, got it? So this is also a problem with the rural area, considering the financial aspect. Okay, they don't have the effective resources. One of the major problem is that Gram Sabha is not a very effective body to take a decision on the financial matters. Gram Sabha body बनाया हमने, it's not very effective body to make a decision or to take a decision on the फाइनेंसेस ऑफ द ग्राम। वो सेंटर से या स्टेट से आएगा, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। सो देयर वाज अ रिकमेंडेशन इन द सेकंड एआरसी। सेकंड एआरसी पे रिकमेंडेशन है फाइनेंशियल पावर को स्ट्रेंथन करने की। दे हैव रिकमेंडेड दैट द लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, ग्राम सभा और द लोकल गवर्नमेंट इन द अर्बन रूरल एरिया शुड बी अलाउड टू बोरो मनी, to borrow money from markets, ठीक है, borrow money from market. This can be a solution, although it's not a discretionary power or it is not unregulated. It should be overseen by or it should be regulated by the state. State के permission से ही ये borrow होना चाहिए। पर जो रिसोर्स क्रंच है, जो फाइनेंशियल रिसोर्स की जो प्रॉब्लम है, दिस कैन बी एड्रेस, दिस कैन इफेक्टिवली एड्रेस फ्रॉम हियर। तो क्या हो सकता है? इफेक्टिवली हम एड्रेस कर सकते हैं इसको, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो दिस इज इन द वे वी कैन से वी कैन मेक द फाइनेंशियल पीआरआई मोर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। अनदर रीजन, देयर इज अ पावर शिफ्ट, पावर टसल between traditional power holder and new mechanism। पावर टसल है कहाँ पे? ट्रेडिशनल पावर होल्डर्स पे, ठीक है, और जो नया मैकेनिज्म बना है उसके बीच में। नया मैकेनिज्म क्या बनाया है हमने 73 से, ठीक है। हमने सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या किया? रिजर्व कर दिया पावर, सीट से रिजर्व किया। किसके लिए? SC ST के लिए भी और वुमेन्स के लिए भी। तो नया रोल हमने नए सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दिया। वी हैव गिवन द न्यू रोल टू द न्यू सेक्शन ऑफ सोसाइटी। The problem is that the traditional power holder, the one who belong from the upper caste, and they eventually turn into a upper class also. Upper caste ही urban areas में आकर के वो upper class में convert हो गया, ठीक है। So there is a more concentration of power in the term of economy or in the term of caste, traditional aspect, ठीक है।
तो दोनों ही ऐसा हो गया, तो बेसिकली दे आर एक्चुअली एक्सरसाइजिंग द पावर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। अब प्रॉब्लम ये है कि ये नया जो मैकेनिज्म बना रिजर्वेशन का, ठीक है, और जो न्यू सेक्शन को जिसको पावर दिया गया, शिफ्ट किया गया, दे आर ऑफर इन टसल। क्या है? ऑफर इन टसल द रियल पावर दैट नीड टू बी एक्सरसाइज्ड बाय देम, द न्यू पावर होल्डर। ओके, दे आर एक्चुअली नॉट एक्सरसाइजिंग द पावर, दे आर ऑफन, क्या होता है ऑफन? they are often been marred or you can compelled to do certain acts. There is also a problem. ठीक है, तो ये भी एक इशू है इंडिया में। Then there is another issue related to, एक अभी नया इशू आया था, deflection. You write it like this. Consensus based election. Consensus based election. What is this consensus based election? There is a voluntary agreement or you can say arrangement. Voluntary arrangement है या agreement है? कैसा है? We are not going to stand in the election, we are not going to contest in the election. ठीक है, एक आदमी contest करेगा election and we all will be electing him. Nobody will be going against that person. कोई और उसके अगेंस्ट में खड़ा नहीं होगा. दिस इज द रिसेंट केस इन महाराष्ट्र. ठीक है, रिसेंट केस इन महाराष्ट्र इन 2020. ठीक है, what happened at that place? There the seats were sold to highest bidder. क्या हुआ? Seats were sold to the highest bidder, or the seats were sold, or seats were given the one who is able to promise the development. जैसे कि क्या डेवलपमेंट? If you get elected in the 5 years, you will build a not road, not तालाब, ये सब नहीं, मंदिर बनाओगे, ठीक है, तुम्हें सिलेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारे अगेंस्ट में कोई नहीं खड़ा होगा, तुम इलेक्शन में जीत जाओगे. This is a very much against what? Very much against the free and fair election. Against free and fair election. So State Finance Commission ने क्या किया उसे? सॉरी, State Election Commission ने उस पूरे इलेक्शन को नलीफाई कर दिया. And there was now there will be a re-election. अब कोविड है तो नहीं हो सकता. Let's see what happens. Okay, got it. ये है PRI. Part 7. You can have many more problems. ठीक है, you can see to that. There's no problem in that. Okay, एक सबसे important aspect भी है. State government has a power to make law on qualification. हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है. क्वालिफिकेशन पे लॉ बना रहा है. ठीक है, तो जनरली लॉ कैसा बना हुआ है? कोई सी कहीं 10th पास चाहिए. यू कैन नॉट हैव मोर देन 2 सन, शुड नॉट बी हैविंग 2 वाइफ. ठीक है, ये सब लॉ है. राजस्थान ने भी किया है, बहुत सारी जगह पे ऐसे हर मतलब कि इट इज एम्पावर्ड बाय द स्टेट. तो स्टेट लॉ बना रहा है उनके क्वालिफिकेशन के लिए. ऐसा क्यों नहीं करते? अगर वहाँ पे 10th है
तो स्टेट गवर्नमेंट में ग्रेजुएशन कर दें और एमपी के लिए पीएचडी कर दें, तो हमारे बड़े बड़े नेता चले जाएंगे घर चले जाएंगे और अपना खेती बाड़ी जो करते हैं वो करेंगे बेचारे, ठीक है। सो दिस इज लाइक अ डिस्क्रिमिनेशन इन द लार्जर ग्राउंड. यू माइट बी not qualified for this formal system, but you are intelligent enough to cater the demands of the people. That is okay. तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन और इक्वल राइट्स फॉर द इलेक्शन के अगेंस्ट है, ठीक है. देयर इज वन मोर प्रॉब्लम apart from this. There is a frequent, you can say frequent Constitution of Delimitation Commission. ये भी एक प्रॉब्लम है. Frequent Constitution of Delimitation Commission and rotation of seats. ठीक है, rotation of seats for reservation. ठीक है, ये भी एक इशू है. ओके, हाउ जो गवर्नमेंट जैसे चेंज होता है पावर, स्टेट गवर्नमेंट, द पॉलिटिकल पार्टी चेंजेस फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. व्हाट दे डू, दे ऑफन create a delimitation commission. Why delimitation commission? Because they want to get benefit from the local level. Okay, वैसे होता है. वो होते ही वैसे ही, स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है. पावर इज ऑल अबाउट, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर. समझदार आदमी के लिए सही है, कमजोर दिल वाले के लिए पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है. इमोशनल के लिए तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. यू शुड बी वेरी रूड, वेरी स्टोन हार्टेड, कोल्ड ब्लडेड. इस देश का भला कौन कर सकता है? मुझे मालूम आंसर नहीं आएगा. हाँ, नो. जिसको दोबारा पावर में आने की चाह नहीं होगी ना, सिर्फ वही करेगा. Those who don't want to get again into the power, not interested getting elected again, सिर्फ वही भला कर सकता है, ठीक है. बाकी कोई नहीं कर सकता. Why? कैसे? हाँ, ऐसा कोई नहीं है, ये फैक्ट है. तो सब दोबारा आना चाहते हैं, ठीक है. जो दोबारा नहीं आना चाहता होगा ना, सिर्फ वही कर पाएगा. एंड व्हाई इज इट सो? क्योंकि पॉलिटिक्स इज ड्रिवन बाय द पीपल, द डिमांड ऑफ द पीपल. और डिमांड ऑफ द पीपल, नॉट डिमांड ऑफ सर्टेन सेक्शन, ठीक है. तो सर्टेन सेक्शन में क्या होगा? यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द लार्जर इंटरेस्ट. क्या करना पड़ेगा? मतलब लार्जर इंटरेस्ट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. And we all know when we do such kind of a, we cater such kind of a individual or you can say sectional interest. तो होता क्या है? It is a short term profit, and short term profit for any reason is harmful. तो मुझे दोबारा पावर में आने की चाह नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा? मैं पब्लिक की बात सुनूंगा ही नहीं. जो मुझे लगता है कि लार्जर इंटरेस्ट में ठीक है, देश को बहुत आगे ले जाएगा, तो वही ना, तो वही करेगा. तो व्हाट इज द नीड फॉर क्रिएटिंग अ ओबीसी, गिविंग अ ओबीसी, यू कैन से नेशनल कमीशन ऑन ओबीसी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? जरूरत ही नहीं थी इसकी. ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत थी? इट्स नॉट रिक्वायर्ड. ऐसे ही होता है. जिसको दोबारा पावर में आने की चाह नहीं है ना, वो करेगा, he will do it.
he or she they can do, लेकिन ऐसा कभी कोई होगा नहीं, ठीक है. Anyways, so rotation of the seats होती है. Whenever the new political party comes to the power, what they do, they constitute a delimitation commission to demarcate the boundary. Demarcate the boundaries as per the it is a benefit to the ruling party. ठीक है. और rotation of seat का सबसे बड़ा problem है. ठीक है. There was a suggestions that the rotation of seat should not happen at every 5 years. ये rotation of seat हर 5 साल पे हो रहा है. ठीक है. ये होना नहीं चाहिए. Whenever some developmental activities is done, local government जो जीत के आ रहा है, what happened at that time, they consider why I am doing it. This seat might get reserved for the another category. It is good for the a person who is getting elected from the SC and ST background and the women, because they can stand anywhere on any seat. But there is a limitation on contesting a seat for the general candidates. ठीक है, उनके लिए limitation है वो. So they consider that it is a waste of money, waste of my time. Why should I develop? Why should I conduct the developmental activities? So it was suggested that rotation should be fixed for 10 years so that the meaningful development can take place at that. Okay, ठीक है. इसीलिए वो क्या करते हैं, जब उन्हें पता लगता है कि अब रोटेशन में ये सीट रिजर्व नहीं है, तो दे स्टार्ट अ डेवलपमेंट वर्क just 6 months before the election. They understand, okay, fine, there is no rotation, this seat is going to remain like here, so I can general candidate, so I can contest. So that is also a reason. Okay, ऐसे ही नहीं वो 6 महीना पहले शुरू होता है, उसके पीछे रीजन है. वो लोग खुद 5 साल करेंगे, but they themselves are not sure whether this is going to happen or not. This seat is remaining open or not. So they are not on the fault. There is a fault on the mechanism. And what I think, it should be not for 10 years, it should be fixed for 15 years. So that meaningful development should take place. ठीक है? चलो. Okay, so this is all about PRI. Okay, let's discuss PESA Act. PESA Act. पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 96. सो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके क्वेश्चंस आते हैं पेसा एक्ट के. पहले तो 73 याद रखो कि 73 विदाउट 96 इज एप्लीकेबल ओनली टू द नॉन ट्राइबल एरियाज ऑफ द कंट्री. पहला नॉन ट्राइबल एरियाज, दूसरा जो शेड्यूल्ड एरिया है उसमें, वहां पे applicable नहीं है. Okay, now what are these scheduled and tribal areas? It is according to this, actually PESA Act is actually for schedule 5 and 6. शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के लिए है. ठीक है, और इसके बाहर जो भी है एरिया, that is basically that, for that we have 73 and 74. ठीक है, बेसिकली 73 है हमारे पास. 74 तो वैसे भी अर्बन एरिया है, तो वहाँ पर ट्राइबल बसता भी नहीं है. ठीक है. व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हैविंग एन अर्बनाइजेशन ऑन द वर्ल्ड? सबसे अच्छी बात क्या है इंडिया के केस में? हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड. जो कास्ट मैकेनिज्म जो फंक्शन करता है रूरल एरिया में, दैट मैकेनिज्म गेट्स डिमिनिश और खत्म इन द रूरल एरिया, अर्बन एरिया. बट दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे हैव टेकन अ न्यू डायरेक्शंस. So what they do, they often interact with their people from their own caste. They organize, they form, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं. ठीक है, तो the god they believe, they make a मंदिर for or मस्जिद for that. ठीक है, तो चल रहा है अभी. हाँ, विश्व हिंदू परिषद तो ठीक है.
वो डिवाइड वैसे हिंदू में भी डिवाइड कर रहा है। Yes. अच्छा नीचे नहीं दे रहे हैं किसी को। Why is this kind of a thing? सोल्यूशन क्या है इसका? जैसे वो वैसे ओरिजिन से इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सारे तो अपने आप चीजों से दिमाग नहीं तो ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है इसका एजुकेशन। ओनली मेजर ओनली सोल्यूशन इज एजुकेशन। एजुकेशन दे दो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इन द हाउस इटसेल्फ। फादर ट्रेडिशनल न्यू बॉर्न। ठीक है। तो अभी रिवर्स भी है। असल में बीजेपी का मेन सपोर्टर है ना यंग है एंड द मिडिल क्लास एंड द अर्बन। ठीक है। उसका मेन वोट बैंक जो है वो बीजेपी का ये है। बीजेपी को रूरल वोट्स इस 2014 में ज़्यादा मिला। अर्लियर बीजेपी वॉज मोर लाइक अर्बन पार्टी। इट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द लोकल रूरल पार्टी ओवर अ टाइम। चलो don't get into this unless and until you don't have a political science optional. Yeah. Okay, so schedule 5 deal with schedule areas except the state of Assam, Meghalaya, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है। इन 4 स्टेट को छोड़ के बाकी देर आर 10 स्टेट इन एक्सेप्ट दिस। ओके वन सेकेंड। शेड्यूल एरिया दिस 4 स्टेट इज इन शेड्यूल 6। ठीक है। एंड शेड्यूल 5 में वी हैव 10 स्टेट दैट इज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। ये 10 स्टेट हैं इसमें शेड्यूल 5। ठीक है। और शेड्यूल 6 में ये पूरे के पूरे स्टेट ही हैं। अच्छा ये पूरे स्टेट में कुछ पॉकेट्स हैं जो कि शेड्यूल्ड एरिया हैं। ठीक है। देयर आर सर्टेन पॉकेट्स विच आर कंसिडर एज अ शेड्यूल्ड एरिया। ओके फाइन। कोई कंफ्यूजन नहीं। सो जो पेसा एक्ट है वो यहां लगता है। ठीक है। PESA Act is for this area, Panchayati Raj, because in this area we have a Adivasi population. So if you see PESA Act, it is actually more powerful as compared to Panchayat 73. Why is it so? Because there is a belief that they have a traditional arrangement for ट्रेडिशनल अरेंजमेंट है। किसके लिए है? कम्युनिटी मैनेजिंग द कम्युनिटी रिसोर्सेस। मैनेजिंग द कम्युनिटी रिसोर्सेस एग्जाम्पल वाटर, फॉरेस्ट एंड एक्सेट्रा। ठीक है। वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, उनके पास क्या है? दे वर हैविंग द वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजिंग दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेस। ठीक है। तो उस वजह से we have more interested in them. Okay, you kindly manage your own resources. कोई कंफ्यूजन नहीं? गुड। तो फीचर्स क्या है पेसा एक्ट के? देयर विल बी अ ग्राम सभा जैसे कि है ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, इसका कंपोजिशन क्या है? ऑल द
द वन हु कैन वोट, ऐसे याद रखो, और यू कैन से वोटर्स, ठीक है, से वोटर्स. Second is so Gram Sabha, you should take a mandatory permission from Gram Sabha. Mandatory permission for the Gram Sabha for acquisition of, ये दो इंपॉर्टेंट है, एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड माइनिंग एक्टिविटीज. माइनिंग और माइनिंग एक्टिविटी के लिए, ठीक है. Acquisition of land and mining activity. This question has came. Mining activities. Also, you have to take the permission related to rehabilitation and resettlement. Rehabilitation और resettlement के लिए आपको परमिशन लेना, ठीक है. ऐसा कुछ 73 के ग्राम सभा में नहीं है. 73 के ग्राम सभा में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का रिपोर्ट पे आपको उसमें मैंडेटरी लेना था, पर इट्स गॉट डेवल्यूटेड ओवर अ टाइम, सो बहुत डाइल्यूट किया, ठीक है. अब वो आया था लार एक्ट से, लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन पॉलिसी 2013, वहाँ से उसको लिया गया था. Empowered the Gram Sabha to give the assent. 70% Gram Sabha's members should be assented on the particular environmental impact assessment. पर वो dilute हो गया बहुत ज़्यादा. They are empowered to regulate the consumption of. Also, they can take few activities. जैसे कि और features में they can take few activities like they can regulate the fund given to ST development. वो मार्केट रेगुलेट करते हैं वहीं का. एक्चुअली ग्राम सभा वहाँ का ना, इट्स लाइक एन एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है, ठीक है. लेजिस्लेचर भी है. द ग्राम सभा ओवर हियर इट्स लाइक अ लेजिस्लेचर बॉडी ऑल्सो एंड एग्जीक्यूटिव ऑल्सो. तो ये दोनों ही फंक्शन एक साथ करता है, ठीक है. क्या करता है? दोनों फंक्शन एक साथ करता है, legislature and executive function. It can regulate the fund, ठीक है. Further, it can also regulate the market. जो वहाँ का मार्केट होता है ना, उसे भी वही रेगुलेट करता है. Regulate the markets. Okay. Also regulate the ownership of forest produce. Regulate ownership of forest produce. केवल कम्युनिटी प्रॉपर्टी है, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी वही. डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, ठीक है. डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, इट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड विथ आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियरीज. Identifying the beneficiaries for poverty alleviation. ये एक्चुअली दिस इज द टास्क. ये टास्क उधर की ग्राम सभा में भी है, 73 के ग्राम सभा में भी सेम टास्क है, ठीक है. आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियरीज, ठीक है. आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियरीज, दिस आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पैसा एक्ट 1996. आपको ब्रॉडली क्या याद रखना है? क्वेश्चन कौन कौन से स्टेट हैं, ठीक है. कौन से साल में आया, 93 कहाँ नहीं लगता है और कहाँ 73 एक्ट कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है.
96 कहाँ लगेगा, ये सब मेजर चीज़ है। मेजर रेगुलेशन में मैंडेटरी कहाँ पे है, एक्विजिशन लैंड का और माइनिंग एक्टिविटीज़ का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। इन स्पाइट ऑफ दैट दिस आर द ब्रॉडर अगेन ओवरव्यू, स्टेट गवर्नमेंट अपना भी बना सकता है, ठीक है, उनके रेगुलेशन के लिए, फाइन, ओके, गॉट द पॉइंट। So this is the PESA Act that we have. Any confusion with PESA Act? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ओके। PESA Act is very important for an exam, very important for an exam. एक्चुअली जो पंचायत राज पूरा है ना, वो पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्बन लोकल बॉडीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पंचायत राज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है, वेरी गुड। सो एनी क्वेश्चन, वी हैव डन विद द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। PRI हमारा खत्म हो गया, कोई क्वेश्चन है PRI को लेके? नो, ओके। Then we have urban local bodies. टाउनशिप है क्या, कैंटोनमेंट एरिया, टाउनशिप, हाँ, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस खाली हमें अर्बन लोकल बॉडी 74 ही देखना है, ठीक है, क्योंकि फीचर्स बहुत है। अर्बन लोकल बॉडी किसके लिए है, स्ट्रक्चर बताया मैंने, स्ट्रक्चर कैसा है इसका, वेट, पहले तो है आप रूरल से अर्बन जाएंगे तो यू विल हैव अ ट्रांजिशन जोन, ठीक है, एक ट्रांजिशन जोन पड़ेगा, फिर आप अर्बन पहुंचेंगे। तो दैट ट्रांजिशन जोन के लिए क्या है, नगर पंचायत। नाउ दिस इज वेरी वेग, देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर। It happens sometimes that there is a huge population in the transition zone that can be categorized into second and the third tier, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पर that has not been converted. There is also a problem. There might be a place which is in the transition, very small population, which can be kept into the ruler, but that has been given the status of nagar, or you can say the municipal council, municipal council ka part, and the nagar panchayat, last is the municipal corporation, okay। So you have a transition period, transition phase है, उसके लिए हमें क्या दिया है, नगर पंचायत। इसके बाद नेक्स्ट इज म्युनिसिपल काउंसिल, and the last is municipal corporation for more than 3 million population। जहां पे 3 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, 3 मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। एनी क्वेश्चन? So this is the structure, we have discussed the structure already, okay। Let's talk about little bit of history, इसका evolution इंडिया में हुआ कैसे अर्बन लोकल बॉडीज का। So first you can see in Madras in 1687, in Madras in 1687 there was a certain element of urban local bodies। अच्छा, अर्बन लोकल बॉडीज ऑलरेडी थी, ऐसा नहीं है, पहले भी थी, लेकिन मोस्ट सेल्फ ज़्यादा कैसी नहीं थी, ऑटोनोमस नहीं थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, हाईली कंट्रोल्ड था, ठीक है। देन आफ्टर दिस, इसके बाद 2 जगह और अर्बन लोकल बॉडीज बनाया ब्रिटिशर्स ने,
Calcutta and Bombay in the year 1726. Uh, 1726 में किसके पास है बॉम्बे? पोर्चुगीज दहेज में वापस में it was given in the dowry Bombay, ठीक है, to the Britain. Prince has died at the year of 99. Britain, Prince Philip died. So अभी नया प्रिंस बनेगा कोई? क्वीन तो हमेशा वो पोजीशन है, प्रिंस ही बनता है, सेम होता है, रूल हेड. All right, Calcutta and Bombay 76. Then we have Rippon's 1882. Rippon's resolution. हाँ मेव दोनों ही है, 70 है और दोनों है, ठीक है, पर मोर इम्पोर्टेंटली 82 का है, क्योंकि वहाँ पे 82 रिपन्स रेजोल्यूशन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ज़्यादा एम्फोसाइज किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज मोर एम्फोसाइज्ड. देन आफ्टर इंडिपेंडेंस अर्बन लोकल बॉडीज किसके पास गया? पावर टू क्रिएट एन अर्बन लोकल बॉडीज दैट वेंट फॉर द स्टेट इन द अंडर द आर्टिकल 40 DPSP, ठीक है, 40 के अंदर उनके पास गया, कोई मीनिंगफुल काम नहीं हुआ, ठीक है, इट वाज अ टोटल वेस्ट, ठीक है. कहीं कॉन्स्टिट्यूट होता था तो उसे क्या करते थे? डिसॉल्व कर देते, इलेक्शन नहीं कराते थे, ठीक है, डेलिबरेटली डिसॉल्व, कोई पावर नहीं, खाली नाम के लिए है, फेक इलेक्शंस होते थे. देयर इज अ मेनी प्रॉब्लम. ओके, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग सो मच प्रॉब्लम, Rajiv Gandhi has constituted a committee to suggest on the improvement on the urban local bodies. They have submitted a report in 1988. Okay, they have submitted a report on the 1988. Okay, nothing happened. Rajiv Gandhi died. 74th Amendment Act. ठीक है, 74th Amendment Act. तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं है सिर्फ ये, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी है, ठीक है. तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके, दैट लीड्स टू द, यू कैन से, फॉर्मेशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडी, नॉट फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है, गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द अर्बन लोकल बॉडी. नाउ इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू क्रिएट अ अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है. स्ट्रक्चर, इट इज अ 3-tier स्ट्रक्चर, ठीक है, 3 tier का स्ट्रक्चर है. हाँ, तीनों स्ट्रक्चर, तीनों कंपल्सरी नहीं है. क्यों कंपल्सरी नहीं है? हाँ, इसका ये नहीं है, बट जनरली होता ही है हर जगह पे, ठीक है. यू कैन से ये तो है बिकॉज देयर इज अ मेयर ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे वार्ड है, वार्ड कंपोजिशन है, ठीक है. एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्शन. अच्छा, पंचायत वाले में भी इलेक्शन देख लेते हैं दोनों, क्योंकि पंचायत में 1-2 चीज़ें मैं लास्ट में कल बोलना आपको बताने का रह गया था. इलेक्शन कैसे होगा इसका? ठीक है, हु विल कंडक्ट द इलेक्शन फर्स्ट? स्टेट इलेक्शन कमीशन. इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दे विल कंडक्ट द इलेक्शन, ठीक है. ओके, नाउ हु इज एलिजिबल? Who is eligible? First is, he should be citizen of India. Second is,
should be completed 25 years age. कल पंचायत में ये रहेगा था बताना 25 years age is a minimum age requirement for the contesting an election for the urban rural body also urban local body और rural local body दोनों के लिए 25 years age is a minimum requirement. ठीक है. And any requirement eligibility में any requirement or any law made by state government. ठीक है. एनी लॉ मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. नो, क्योंकि लोग कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है एज. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है. ठीक है. कोई कंफ्यूजन? नाउ व्हाट विल बी द ड्यूरेशन? नाउ टॉक अबाउट ड्यूरेशन. 5 years. This is the maximum. Unless the state government को लगे कि it can dissolve it, it is necessary to dissolve the urban local body, then the state government can dissolve it. But they should provide the reason, or they should be heard by the urban local government. ठीक है. रीजन होना चाहिए बकायदा क्योंकि क्यों डिसॉल्व कर रहे हो. ठीक है. एंड दे हैव अ राइट टू नो एंड राइट टू हियर. ठीक है. दोनों चीजें. ठीक है. तो ड्यूरेशन इज मैक्सिमम 5 years. 5 साल के बाद में रिकॉन्स्टिट्यूट. अगर से इन सपोज देयर इज अ डिसोल्यूशन, डिसॉल्व हो जाए. ठीक है. अगर 5 years से पहले स्टेट गवर्नमेंट ने अर्बन लोकल बॉडीज को डिसॉल्व कर दिया. ठीक है. देन व्हाट विल हैपन इन दैट केस? इट शुड बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद इन 6 months. विद इन 6 months. सेम इज विद द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑल्सो. ठीक है. सेम है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए कि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा. अब दिस रिकॉन्स्टिट्यूशन कैन हैपन इन 2 ways. Either a different party will constitute a body, जनरली जहां पे नहीं बनती है. ठीक है. या फिर आप री इलेक्शन करा करके वापस से री इलेक्शन कराइए. री इलेक्शन 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए. ठीक है. गेटिंग इट? नाउ देयर इज आइदर दिस री इलेक्शन which is going to be conducted within 6 months, either it should be with the remaining period or for the full term. First it will be remaining period if it is a less than 6 months. अगर 6 महीने से कम टाइम बचा है टर्म खत्म होने में तो वो क्या होगा? इट विल बी फुल टर्म के लिए होगा. 6 महीने से ज्यादा बचा है टाइम तो रिमेनिंग पीरियड के लिए होगा. यस बोलिए. ठीक है. 6 महीने से अगर ज्यादा टाइम बचा है टर्म 5 साल खत्म होने में जो एलोकेटेड 5 years है. ठीक है. तो रिमेनिंग पीरियड के लिए ही सिर्फ होगा. और 6 महीने ही बचा है या उससे भी कम बचा है तो फिर पूरा 5 साल में. तो जनरली क्या होता है 1-2 साल होता है ना तो उसे नहीं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. इलेक्शन करवा करके 1 साल वैसे उसको डिसॉल्व करते हैं कि वो टाइम बच जाए 6 महीने. सो रिकॉन्स्टिट्यूट दिस देयर इज द कंटिन्यूटी इन द इलेक्शन. ठीक है. इलेक्शन का ये फंडा है. एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन. दिस इज द अर्बन लोकल बॉडी. ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका फीचर है. प्रॉब्लम क्या है इसके साथ में? ठीक है. जो उसके प्रॉब्लम्स हैं एंड फर्दर वेट इन द इलेक्शन देयर आर रिजर्वेशन. यहां पे भी रिजर्वेशन है. रिजर्वेशन फॉर 2 SC and ST, that is I can say 33%. मिनिमम है ये. This is not a maximum. And women, this is 33% again. These seats can be reserved
ठीक है, द सीट्स विल बी रिजर्व्ड, इट विल बी ऑन द रोटेशनल बेसिस डिसाइडेड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन, रोटेशनल होगा। और इम्पॉर्टेंट ये है कि सीट जो रिजर्व्ड है जिसके लिए, वुमेन की सीट अगर वो रिजर्व है तो वुमेन ही वहां खड़ी होगी, दैट इज ओके। नो ओपन पर्सन कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम दैट सीट, फर्स्ट। सेकंड, दिस रिजर्व कैंडिडेट्स और एनी पर्सन बिलोंगिंग फ्रॉम द SC and ST एंड वुमेन, ठीक है, दे कैन कॉन्टेस्ट इन द ओपन सीट ऑल्सो। वो क्या कर सकते हैं, वो ओपन सीट में भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं और अपनी सीट में भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यू ट्रैवल बाय ए मेट्रो, नहीं समझ में आता ऐसे समझो, ट्रैवल बाय ए मेट्रो, सीट रिजर्व फॉर द वुमेन, दे कैन सिट ऑन दैट सीट बट दे कैन ऑल्सो सिट ऑन द ओपन सीट, जो दूसरी सीट है वहां भी जाके बैठ सकते हैं। हाँ हाँ, अगर खाली वो अपनी सीट पे लड़ सकते हैं तो क्या रिजर्व सेग्रीगेट, उसे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन बराबर आगे तक रिजर्वेशन उसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं, दैट इज लॉस। बेसिकली ये समझो, ये लॉजिक बहुत लोगों को सब कंफ्यूजन, सर ये ऐसे वैसे, ऐसे समझो, जैसे तुम्हारा है सीट रिजर्व्ड है ही है तुम्हारा, ओपन में भी तुम हो, ठीक है, तुम्हारे लिए 100% है, बाकी लोग के लिए लिमिटेड है, ठीक है। ओके, गेटिंग द पॉइंट। कोई कंफ्यूजन अभी, यू हैव एनी कंफ्यूजन? ये है पूरा इलेक्शन फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। देयर आर मल्टीपल अर्बन टाइप्स ऑफ लोकल बॉडीज, यू काइंडली गो विद द टेक्स्ट, नोट्स के हिसाब से, मतलब बुक पढ़ लेना, बुक में तुम देख लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक क्वेश्चन तो नहीं आया, एक बार देख लो कि है क्या। हाँ, यू शुड गो थ्रू इट वंस, पर उसको डिटेल मार्किंग मत करो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, challenges, let's talk about challenges। इसमें ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है, ओके, जो कि स्पेसिफिक इसी का ही है, किसका? देयर इज वन इंपॉर्टेंट challenges which is one few important challenges which is specifically for the local body, urban local body, रूरल के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है, ओके। Let's talk about challenges. Position of mayor. Position of mayor. So position of mayor is like a very dicey. It's very dicey. Why? Because there is no uniformity throughout the country. So the position of mayor can be for 1 year, 2 year, 5 year. कितना भी. Even the mayor is elected either directly, either indirectly, ठीक है। Although mayor is a very important position, political position in the metropolitan areas. दिल्ली में मेयर है, कोई मेयर तो होगा, पर सिग्निफिकेंस है दिखता ही नहीं कहीं पर भी, उसका रिकमेंडेशन इज यूजलेस, कोई पावर नहीं है, ओनली इट इज लाइक अ नॉमिनल और फंक्शनल खाली दे रखा है हमने, जस्ट टू, देयर इज नो पावर। फरीदाबाद का भी कोई मेयर होगा? हाँ, तो मेयर पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स हैव नो मीनिंग, अनलाइक वी हैव अ चेयरपर्सन फॉर जिला परिषद। चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद इज वेरी पावरफुल बॉडी, इट्स अ वेरी पावरफुल पोजीशन। व्हेन वी कंपेयर द चेयरपर्सन ऑफ पंचायती राज जिला परिषद to with the mayor has no functional or no meaningful power, all the power are nominal, ठीक है। सेरेमनी में तुम्हें बुलाएंगे, चीफ गेस्ट बनाएंगे, चाय पियो, बिस्किट खाओ, घर जाओ, ठीक है, but no meaningful power, ठीक है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज as such is not able to take। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 3rd टियर जिला परिषद का जो है सबसे ऊपर का, उसका जो चेयरमैन बनता है
वो होता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के रूरल बॉडी का चेयरमैन वही है, ठीक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के रूरल बॉडी का चेयरमैन एक्चुअली वही है, एंड इट इज अ वेरी पावरफुल पोस्ट. इवन दैट पोस्ट इज रिजर्व फॉर सम टाइम, इट इज रिजर्व फॉर द वुमेन ऑल्सो. वो पोस्ट रिजर्व भी होती है वुमेन्स के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द रोटेशनल बेसिस पे. क्या SC ST के लिए भी रिजर्व होती है, ठीक है, गेटिंग इट. सो बेसिकली if you compare that position to the mayor has no meaningful position. Now if you compare mayor with the international bodies, international मतलब internationally अगर किसी कंट्री से कंपेयर करोगे तो mayor is very powerful over there. Next example of UK. In UK, in the metropolitan city like London, ठीक है, you take a mayor of US में mayor of New York, so they are very powerful body. They have a very, very extensive powers. In India, it is this way. This has been created just to satisfy the constitutional demand. State government has not given any meaningful power to the mayor. ठीक है, एक ये बहुत बड़ा रीजन है. सेकेंड इज ओके, फाइनेंशियल डिफिकल्टी इसके पास भी है, अर्बन लोकल बॉडीज. फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, सो इससे अच्छा है कि गांव चले जाओ और चेयरमैन बन जाओ, ज़्यादा पावरफुल हो, रादर देन बिकमिंग अ मेयर. पर पोजीशन ऑफ मेयर इज लाइक अ पॉलिटिकल पैट्रोनेज. इट्स लाइक अ पॉलिटिकल पैट्रोनेज. पॉलिटिकल पैट्रोनेज की तरह काम करता है. कैसे? ठीक है, तुमने मेरे इलेक्शन में काम किया था, MP के इलेक्शन में हमारे स्टेट, हमारी पार्टी के लिए, ठीक है, तुम्हें मेयर बना देते हैं. तो इट्स लाइक अ सेफ हेवन. ऐसे ही होता है, ठीक है. जब मेयर, हाँ, और अब आप यू आर सन ऑफ अ मिनिस्टर और डॉटर ऑफ अ मिनिस्टर, तो तुम्हें तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस देंगे तो तुम्हें मेयर बना देंगे. तो पॉलिटिकल पेट्रोनेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर. इट शुड बी कम्प्लीटली डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी. सजेशन इज दिस मेयर पोजीशन शुड बी, सेकंड ARC का सजेशन है कि मेयर की जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, सेकंड ARC का सजेशन, इट शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड पोजीशन. लेट द पीपल डिसाइड. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो मीनिंगफुल पोजीशन दे करके, अब इफ डायरेक्टली इलेक्टेड तो पावर तो देना पड़ेगा, ठीक है. यू कैन नॉट गो विद दैट कि पावर नहीं दिया और इलेक्शन करा, इट्स अ वेस्ट. ठीक है. सेकंड इज फाइनेंशियल डिफिकल्टी इज द स्टेट डज नॉट डेवलप द पावर बिकॉज स्टेट इटसेल्फ इज अ फाइनेंशियली क्रंच स्टेट. उनके पास खुद के पास नहीं होता, वो बेचारे करे क्या. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ प्रॉब्लम, वन मोर प्रॉब्लम. ओके, creation of special purpose vehicle. Special purpose vehicle. What is special purpose vehicle? It is generally created by the government. क्या करेगी गवर्नमेंट? एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना देंगे, मतलब गाड़ी नहीं होती है वो, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, उसको एक स्पेसिफिक टास्क देगी. तो तुम्हारा काम क्या है? सिर्फ यही काम करना तुम्हारा टास्क. जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज अभी दिस इज अ नॉर्मल फीचर इन द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पेसिफिकली इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. व्हेन सेंटर डोंट वांट टू गिव अ पावर टू एनीबडी, स्टेट और लोकल को फंड नहीं देना क्योंकि उन्हें पता है कि मिसयूज हो रहा है या फॉर एनी रीजन, व्हाट विल हैपन इन दैट केस? व्हाट दे आर डूइंग, दे आर क्रिएटिंग अ स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. जैसे कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पता है एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, ऐसे बहुत सारी जगह बन रहा है. तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. ओके, so what is happening in that corridor? This corridor is managed by whom?
मैनेज बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ही यही है उसको बनाने का। यू माइट बी अवेयर अबाउट स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज पता है? हु इज इम्प्लीमेंटिंग दिस स्मार्ट सिटीज? इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द स्पेशल पर्पस व्हीकल। Why you need a special purpose vehicle when you have a urban local body? अर्बन लोकल बॉडी है ना उसके लिए हमारे पास में। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल को बनाने का क्या फायदा? सारा होल्ड सेंटर के पास। यस, ऐसे तो एक सेकंड में डिसॉल्व कर सकते हैं अगर अच्छा ना हो। it can dissolve. There is a better utilization of fund, but that is actually not should be done. There should be a more trust to the urban local bodies. They are more capable, they are more resourceful if you provide them. ठीक है? So special purpose vehicle is actually a bigger problem. Creation of special vehicle undermining the authority of constitutional authority of urban local bodies. ठीक है? कोई confusion है अभी? कोई नहीं? It's good, all good. कोई confusion नहीं है ना अभी? Okay. So special purpose vehicle, this is one of the major problem. Then there is a problem of GST. GST का भी problem है, okay? And what is the GST problem? Urban local body has certain taxes before GST. ठीक है? Housing tax, octroi, ठीक है? Service charges in certain things. ठीक है? Water tax is there. ठीक है? Electricity taxes are there. Okay, so what is this? This tax, the power of taxation has been abolished because of the GST. And this power got shifted. सेंटर के पास नहीं, सेंटर के पास स्टेट के पास वो भी अर्बन लोकल बॉडी कलेक्ट करता है वो। तो वहीं भरोगे जाके, अर्बन लोकल बॉडी के पास ही रहता है वो, लगाता भी वही है। सो व्हाट हैपन, दिस हैज एक्चुअली impacted more on the financial resource of the financial resource and financial independence of the urban local bodies. ठीक है? So these are the problems with the challenges with the urban local bodies. किसके solution? मोर पावर दो उन्हें, अर्बन लोकल बॉडीज को, गिव देम मोर पावर, फाइनेंशियली उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो उन्हें। ठीक है? मीनिंगफुल डेवोल्यूशन, यू शुड एक्सेप्ट, द स्टेट शुड एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन मेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, ओके? जैसे कि सेंटर है, सेंटर का स्टेट सेंटर फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। all the members of the Finance Commission of India is, कौन उन्हें वो करता है कॉन्स्टिट्यूट? दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है? स्टेट डज नॉट हैव रिप्रेजेंटेशन, तो हमेशा स्टेट लड़ता रहता है, पर स्टेट के पास में ऑप्शन नहीं है। ठीक है? तो मेक इट अ बेटर इंस्टीट्यूशन। स्टेट ऑल्सो, द स्टेट मेंबर शुड ऑल्सो बी देयर। ठीक है? उनका भी अपना रिप्रेजेंटेशन रखो। And rather than having the 5-year term, it should be 10 year, ताकि और मीनिंगफुल डेवोल्यूशन हो सके। जब स्टेट ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा मेंबर्स की बॉडी बनेगी, तो 10 years का जो है आप रिकमेंडेशन दीजिए, दैट विल बी फार बेटर। द सेम इज द केस विद द स्टेट फाइनेंस कमीशन। यू ऑल्सो एम्प्लॉय, और मेंबरशिप जो है लोकल बॉडीज से भी लो, टू हैव ए मोर मीनिंगफुल, you can say discussion and the devolution of fund. ठीक है? ये ज़्यादा फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है, एंड पॉलिटिकल विल सबसे इंपॉर्टेंट है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए। अदरवाइज इट इज अ वेस्ट। व्हाट इट विल बी? इट विल बी लाइक अ वेस्ट। ओके? एनी कंफ्यूजन? कोई क्वेश्चन है अर्बन लोकल बॉडी से या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से? कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं है? We are done with the class.